देखो इंग्लिश में सुन लो पहले. Sorry, I don't know Hindi yet. वो नहीं आएगा. वैसे दीदी स्विच दो. Yeah, try sheets. Is that better? So yesterday, the Guru was talking about the reality of the soul, and I would have listened to a class by Srila Gurudev. Well, first I want to offer my humble obeisances at the dust of the Lord of my Diksha Gurudev, Sri Sripad Bhaktivedanta Saranti Maharaj, and the same unlimited heartfelt obeisances at the dust of the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev, Sri Srimanti Shamrani Didi, and all the Guru Varga, our Param Gurudev, and all the assembled Vaishnavas, present, past, and future. So this class, Srila Gurudev was talking about a sloka that explains Jiva Tattva. The shloka, no? Loud, okay. Vayam divita binivishatasya ishad apitasya viparayo smriti tanmayato buddha abhajatam bhaktyaikayasham gurudeva tatma. And this is from the Srimad Bhagavatam, as we are hearing about from Gurudev. And the translation is fear bhayam arises when the jiva, when living entity misidentifies itself with this gross material body due to absorption in the material illusory energy of the Lord, Maya. And so this bewildering and fearful condition is affected by the potency of illusion or Maya. And therefore an intelligent person should engage themselves unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord, but under the guidance of a spiritual master, and whom he should understand as and accept as the most worshipful deity, his very life and soul. So it talks about Maya, and Maya is a pure devotee herself. She's amazing at what she does. She serves Krishna exactly how he wants her to serve him. And so to make sure that we are associating with Maya right now, I mean, I am always serving my senses because of Maya. She has made me forget my constitutional position, which is also part of this verse, is that we forget our constitutional position as a servant of the Lord because of Maya. And so in order to remember, we need the help of Guru, who is a pure devotee. We need the equivalent to Maya Devi. We need a pure devotee who is serving Krishna to help us understand our constitutional position as his servant. And with that, we are always serving something. Our soul, our jiva, is always trying to serve something. Like I said, I'm always trying to serve my senses. I've served my parents. I've served my dog even at home when I had a dog. And that's just because my soul was yearning for this service to Sri Guru and Gauranga. And so, and should I keep going? Okay. So another verse that kind of goes along with this is that we also should never stop being in association with sadhu sangha, because even when we are an advanced devotee, or we think we are an advanced devotee, we think we know everything, we read the Bhagavad Gita, we read the Srimad Bhagavatam, we think we know everything, it doesn't matter. Krishna Bhakti, Janmay Mulya Hoya Sadhu Sangha, Krishna Prema, Janmay Tanyo Punya Mukha Anga. This is talking about how when you are advanced devotee, well, actually, the root cause of devotional service is association with the pure devotees. And
when you have that love for Krishna that comes out and is awakened in you, you still need sadhu sangha. You still need the association. It is most essential because it is Maya Devi, like I said, is always working, and she gets more subtle as we go on, as we increase in our bhakti. She becomes more subtle, and she can like attack us in more subtle ways. So it's important so that to keep that association, because association is everything. We are a makeup of the people that we surround ourselves with. So to have a pure devotee in our presence, we need to soak this up and at any chance hear Hari Katha, because that is what, like Gurudev said today, Hari Katha is what is going to really clean our heart and cut our heart, the seed of sin in our heart, because we need that cutting. We can't just wash it away. It's deep, it's rooted. So we need Hari Katha and Sadhu Sangha and association with the devotees always, no matter what. Vanchakopaturvishya kripa sindhuvya vichapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Very good. One clapping for me. अनुवाद कर दो। जो उसने इंग्लिश में बोला अभी हिंदी में सुनो। आगे बैठोगे तो सब लोग देख पाएंगे आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमने सुना हरे कृष्ण कि किस प्रकार जो जीव है, हम लोग क्या हैं? हम लोग जीव हैं, और वो जीव किस प्रकार इस माया में फंसता है, किस प्रकार जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप से हटकर वो किस प्रकार इस माया के चंगुल में आ जाता है। तो उसके लिए हमारे को अभी हमने एक श्लोक सुना, भयम द्वितीय विनिवेशितः स्यात् ईशात् अपितस्य विपर्ययो स्मृति तन माया तो बुध आभजेतम यस्यैक एषा गुरुदेवतात्मा। सो इसमें हमने क्या सुना कि भयम द्वितीय अभिनिवेशितः स्यात्, भयम द्वितीय अभिनिवेश, हमारा जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश को क्या बोलते हैं? हमारा एब्जॉर्प्शन, कि हम चिंतन किस चीज का करते हैं, किस चीज में रचे पचे हुए हैं हम। तो जो वस्तु में हम रचे पचे हैं वो वस्तु क्या है पहले ये समझते हैं, और वो वस्तु जिसमें हम रचे पचे हैं वो कैसे हमारे हृदय में भय का उत्पन्न कर रही है। तो इस श्लोक, जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, इसमें यही बताया गया कि कैसे जो हमारा जिस वस्तु के अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन रहता है, हम जिसमें रचे पचे होते हैं, वो ही वस्तु हमारी चित्तवृत्ति को निर्धारित करती है, और वो ही वस्तु से हमारे को भय उत्पन्न होता है। जैसे हम अपने घर से कितने जुड़े हुए रहते हैं, अपने परिवार से कितना जुड़े हुए रहते हैं, उसी परिवार पे कोई भी आंच आती है तो हमारे हृदय में कितनी ठेस पहुंचती है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हमारे किसी परिवार के सदस्य को कुछ हो जाए या हमारे घर को कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं। तो हमारा जो अभिनिवेश है, पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन सिर्फ हमारा मैं के साथ नहीं, मेरे के साथ है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मैं और मेरे का फर्क क्या है। जब वो एब्जॉर्प्शन मेरे वाली चीजों के साथ होता है तब वहां पर भय की उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के पास कुछ खोने को होता है तभी तो भय होगा उसके हृदय में। तो हमारे पास, क्योंकि हमारा सारा एब्जॉर्प्शन, हम सारी जो हमारे आसपास की वस्तु हैं, जो मेरी वस्तु हैं, जिनको मैं समझ रहा हूँ ये मेरी हैं, क्योंकि मेरा सारा ध्यान उसके ऊपर जा रहा है, मेरी वस्तु के प्रति, तो वो जो मेरी वस्तुएं हैं वो सारी इस जड़ जगत की वस्तु हैं और वो नश्वर है। और क्योंकि वो जड़ जगत की वस्तु है, नश्वर है, तो मेरा भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है, वो नित्य वस्तु नहीं है। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशितः स्यात् ईशात् अपितस्य विपर्ययो स्मृति। तो ये जो जीव है
किस प्रकार ये भगवान से विमुख होकर उसने जो इस जड़ जगत में अपनी सत्ता को, जो वो समझ रहा है कि ये मेरी सत्ता है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, उसमें जैसे ही वो अभिनिवेश हुआ उसी समय उसके हृदय में भय की उत्पन्न होती है। और हम अपने जीवन को हम खुद से अगर देखें, सोचें, तो पल पल में हमारे को दिखता है कि कैसे भय से हम पूर्ण रूप से युक्त हैं। हर एक एक छोटे छोटे कदम पे छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई करता है तो एक भय रहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं तो पिटाई होगी। तो धीरे धीरे फिर अपनी खुद की सोचने लगता है कि नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं आगे कमाऊंगा क्या, आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। ऐसे ऐसे करते फिर शादी का भय कि कोई अच्छी पत्नी मिलेगी कि नहीं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद बच्चे का भय कि बच्चा होगा कैसा होगा, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, तबीयत कैसी रहेगी, सब चीज छोटी से छोटी चीज हम पूरा उसी में अभिनिवेश रहते हैं। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशितः स्यात् इच्छात् अपितस्य विपर्ययो स्मृति। तो यही जो हमारा अभिनिवेश है ये हमारे को भुला देता है, और ये जो भूलना है, फॉरगेटफुलनेस, यही जीव की सबसे बड़ी बीमारी। हमें लगता है कि हमारी कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो कि जड़ है हमारे इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसने का, और वो क्या है, हमारा ये भूलना। क्या भूलना? कि हम कौन हैं। हमें ये सब पता है कि मेरा क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ही क्या हूं, मैं कौन हूं। तो इसी के संबंध में बताया गया जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कि कैसे जो जीव है वो कृष्ण का नित्य दास है। और हम अभी ही सुन रहे थे कि किस प्रकार हम जो ये दासत्व है ये हमारा स्वरूप है। तो क्योंकि ये हमारा स्वरूप है तो हम इससे बचते नहीं, हम हमेशा किसी ना किसी की दासत्व को स्वीकार करते हैं। एक पत्नी होती है, वो अपने पति के दासत्व को, सबसे पहले अपने पिता के दासत्व को स्वीकार करते कि मैं अपने पिता के ही अंडर हूँ। मैं पैदा हुई, शुरू से ही पिता माता ने मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करी। उसके बाद मेरी शादी हुई तो वो अपने पति के अंडर हो जाती है, उनकी सुरक्षा में चली जाती है और उनकी दासत्व को स्वीकार करते, फिर अपने पुत्र को सुरक्षा में चली जाती। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। और अगर कोई भी नहीं तो घर में, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे घर का कुत्ता भी अगर हम पालते हैं तो उस कुत्ते की भी हम देखते हैं किस प्रकार से सेवा की जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे राजा महाराजा हो, हर चीज उसको खाना भी ला कर देंगे, हर चीज, एक से छोटी एक चीज, बीमार हो जाएगा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, एकदम जैसे बच्चे की सेवा करते हैं। तो उस प्रकार जो सेवा करने की हमारी अंदर प्रवृत्ति है, और अगर वो सेवा ना मिले तो हम खुद बेचैन हो जाते हैं। मान लीजिए आपको सारा का सारा शान शौकत दे दिया जाए और एक टापू पे आपको छोड़ दिया जाए जहां पर सारी खाने की सुविधा, पहनने की सुविधा, सब चीज आपके पास है एकदम A1 क्वालिटी की, लेकिन फिर भी 1 से 2 दिन के बाद लेकिन वहां पर कोई और है नहीं जिससे आप वार्तालाप कर सकें, जिसकी आप सेवा कर सके, सेवा ले सके, प्रेम का आदान प्रदान कर सके। और ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद दुनिया की सारा ऐश्वर्य होने के बावजूद भी हृदय इतना बेचैन हो जाएगा कि आप वहां पर व्यक्ति सुसाइड तक करने को रेडी हो जाएगा। और आजकल हम यही देखते हैं किस प्रकार इतनी ऊंची ऊंची स्टेटस पे लोग पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में ये सुसाइडल रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जितना आप मटेरियली जड़ जगत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, जड़ीय चीजों के साथ बढ़ते हुए जितना अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं लोगों को, उतना ही डिप्रेशन रेट्स बढ़ रहे हैं। तो क्या है, और इसका सबसे बड़ा जो रीजन बताया गया, यूएस में इसका सर्वे हुआ, उसमें रीजन बताया गया लोनलीनेस, कि किस प्रकार जो वो उनके अकेलापन है वो ही उनकी डिप्रेशन, उनकी सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि कैसे जो हमारा जो स्वरूप है वो क्या है, प्रेम का स्वरूप है। हमें प्रेम आदान प्रदान करना, सेवा आदान प्रदान करना। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी आके खड़ी होती है वो वहां होती है जहां पर हम ये समझ नहीं पाते कि किसकी सेवा मुख्य है। हम सबको ही एकमात्र समझने लगते हैं, एक ही तराजू में तोलने लगते हैं और उसके बाद सबकी सेवा करने लगते हैं। आप खुद ही अपने आप से प्रश्न करिए कि आपने पूरे जीवन किसी एक व्यक्ति की भी अगर सेवा करी तो क्या उसको संतुष्ट कर पाएंगे? एक व्यक्ति को भी नहीं संतुष्ट कर सकते हम। पूरे जीवन उसके लिए ही सेवा करें अगर, और सारा कुछ भूल जाए अपना, तब भी उस एक व्यक्ति को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो हमें जो हमारी सेवा है वो कहाँ लग रही है, हमें देखना पड़ेगा। हम जो ये अपना जो दास का स्वरूप है ये कहाँ पर जाके स्थित होगा।
जैसे बतलाते हैं कि कैसे जो वस्तु जिस चीज का अंश है वहीं पर ही पहुंच के वो पूर्ण रूप से अपने एक सुख को प्राप्त करती है। और हम ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी इस नेचर को हम ऑब्जर्व करें कि कैसे एक धरती से आप एक छोटा सा पत्थर उठाते हैं और उस पत्थर को ऊपर भी फेंकते हैं तो वो पत्थर नीचे आता है। तो बाहरी रूप से साइंस के थ्रू हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण है, किंतु जो शास्त्र बताते हैं कैसे कि जो अंश है वो हमेशा अंशी में ही पहुंचना चाहता है, अंशी की ही सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार हम अग्नि को देखते हैं, अग्नि हमेशा ऊपर क्यों उठती है? उसके लिए गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता क्या? तो वहां देखते हैं कैसे सूर्य उसका क्या है? स्तोत्र, और उस सूर्य की तरफ वो अग्नि उठती है। तो इसी प्रकार हमारा जो स्वरूप है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अगर हम सेवा दें? हाँ, पानी का भी जैसे हम देखते हैं किस प्रकार वो कहां से आता है? पहाड़ों से जब बर्फ होती है, बर्फ पिघलती है, वहां से नदियां बनती है, नदियां बन के वो समुद्र में जाकर ही मिलती हैं। और हर पानी हम जो यूज करते हैं वो नाली से समुद्र में जाता है और वहीं से इवेपोरेशन साइकिल होता है, फिर वर्षा का साइकिल, तो पानी समुद्र में ही जाकर मिलता है। तो सारा जो पानी है वो समुद्र में ही जाके मिलता है, और वहां से भी उठ के जब वो पूरा रिसाइकल होकर वहां से इवेपोरेशन होके बादल बनते हैं, पूरा जो प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम यही समझ रहे हैं कि किस प्रकार जो ये आत्मा है, जो आत्मा का स्वरूप क्या है और उसका जो स्वरूप है उसको उस स्वरूप में स्थित करने के लिए हमें किसकी सेवा करनी पड़ेगी। हम ये जो शारीरिक धर्म को पालन करते हुए चलते हैं तो वो आवश्यक है, किंतु वो नित्य नहीं है। हमारे को ये समझना पड़ेगा कि क्या नित्य है, कि जो मैं कर रहा हूं वो कहाँ लग रहा है। जब वो हमें समझ आने लगेगा तब मैं उसी वस्तु पे ही ज्यादा फोकस करूंगा जो कि मेरी एक ऐसे बैंक अकाउंट में जाएगी जो कि खर्च नहीं होगा। तो हम जैसे देखते हैं कि किस प्रकार जो आत्मा की प्रवृत्ति क्या है, तो यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया गया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कि हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण का ही दासत्व, हम दास हैं कृष्ण के। और उसी को ही समझाने के लिए जैसे हमने अभी सुना कि कैसे उसको उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को साधु संग करना पड़ेगा जो कि उस स्थिति में स्थित है। क्योंकि जब तक हम उस चीज के बारे में जानेंगे नहीं, उसका एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हम सुनते हैं कि हर एक छोटी से छोटी वस्तु का भी एक प्रोसेस होता है, गाड़ी चलाने का प्रोसेस, सब्जी बनाने का प्रोसेस। अगर आप जैसे गुरुजी बहुत एक एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे अगर आप एक कढ़ाई में आप पानी भर देंगे और उसके बाद सोचे कि अब मैं सब्जी डालूंगी या ऑयल डालूंगी, तो वो सब्जी कभी भी बनेगी? कभी नहीं बनेगी। पहले ऑयल डालना, फिर उसके बाद सब्जी डालना, फिर पानी डालना, तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो यही जो हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को उस स्वरूप में पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है। क्योंकि हम अनादिकाल से कितने जन्मों से भटकते हुए समहाउ और अदर इस बार हम मनुष्य शरीर में आए हैं। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है। ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो नरक में ही जाएंगे। जब व्यक्ति एक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो नरक में ही जाना पड़ता है उसको। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया तो शास्त्र साफ साफ बोल देते हैं कि आपको नरकगामी होना ही पड़ेगा। कितनी सारी जीव आत्माएं भटक रही हैं एक मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए। हमारे अंदर कितनी आत्माएं हैं बताइए? हमारे अंदर कितनी आत्माएं? एक आत्मा है? नहीं, हमारे अंदर असंख्य आत्माएं। किस प्रकार? हमारे अंदर कई सारे कीटाणु हैं, कई सारे बैक्टीरियाज हैं, एल्गे, अमीबा, जो छोटे छोटे चीजें हैं। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हम पढ़ते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एक सेल सब कुछ करता है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है, वो खाना भी खाता है और वो मल भी त्याग करता है। एक एक सेल, एक एक वो छोटा छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो सारे जो हैं उनके अंदर भी एक जीवात्मा है, तभी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर आत्मा ही नहीं हुई उसके अंदर तो वो तो एक जड़ीय वस्तु हो गई। लेकिन नहीं, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, वो तो बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो तो खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी आत्मा है। तो हमने कितनी करोड़ों करोड़ों आत्माओं को अपने अंदर आश्रय दे रखा है।
और वो सारी आत्माएं भटक रही थी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा जो जिसका ये मनुष्य शरीर है, सिर्फ उसी को ही ये मनुष्य शरीर मिला। तो हम अगर देखें तो हम बस अगर इसको बस सोचें बैठकर कि क्या ही किया था ऐसा जो मुझे मनुष्य शरीर मिल गया, और जिस प्रकार भी मिल गया तो अब मेरा क्या कर्तव्य बनता है इसके साथ। बाकी सारी जो आत्माएं भटक रही हैं, जिनको मनुष्य शरीर नहीं मिला, जो गिड़गिड़ा रही हैं, तो उनको जब नहीं मिला और मुझे मिल गया, तो अब मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं फिर से उन योनियों में ना जाऊं, फिर से उस चक्रव्यूह में ना पड़ूं। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। और श्रीमद् भागवतम बता रहे दुर्लभो मानुष देहो देही नाम षडभंगुर। ये जो मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। और देही नाम षडभंगुर, कुछ नहीं पता कब इसका क्षण भंगुर हो जाए, कब ये खत्म हो जाए। किसी को पता है कि वृद्ध कब होता है व्यक्ति? वृद्ध की डेफिनेशन है कि जो मृत्यु के निकट है। ऐसा नहीं कि जिसके बाल सफेद हो गए वो वृद्ध हो गया, नहीं। वृद्ध मतलब जो मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। और कौन मृत्यु के निकट नहीं है? छोटा से छोटा बालक से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग भी, सब लोग मृत्यु के निकट हैं। आजकल तो पेट में ही मिसकैरेज हो जाता है, तो वो क्या, वो मृत्यु नहीं हुई इस व्यक्ति की? तो उस प्रकार हमें समझना है कि अगर हमें मिल गया, हमारे को हाथ पैर ठीक दे दिए भगवान ने, आंखें दे दी, हमने क्या एक्स्ट्रा किया था? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले थे इन सब चीजों के लिए? कुछ नहीं किया था। और सामने वाला व्यक्ति जिसको जो एक कुत्ते के शरीर में है, वो क्या भजन कर पाएगा? लेकिन हमारे को ये चीजें मिली हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है उन ठाकुर के प्रति जिन्होंने हमारे को ये सब प्राप्त कराया, ये हमें दिया। तो वहां क्या बोल रहे हैं? दुर्लभ मानुष देह देही नाम षडभंगुरम तत्रापि दुर्लभ अन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि ये दुर्लभ तो है ही शरीर, और इससे भी अधिक दुर्लभ दूसरी चीज क्या? साधु संग, उन वैकुंठ प्रियों का दर्शन, उन शुद्ध भक्तों का दर्शन प्राप्त होना, ऐसा माहौल मिलना जहां पे हम भक्ति कर सकें। कितने सारे मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अपने जीवन के अंतिम मोड़ पे आके पता चलता है कि ऐसी भी कोई वस्तु है भाई, कि भक्ति नाम की भी कोई चीज होती है। अगर कोई कहे किसने देखा स्वर्ग नरक, हमें क्या पता, आप तो थ्योरेटिकली बोलते जा रहे हो, क्या जवाब देंगे? तो उस चीज को हम ये समझेंगे कि कैसे स्वर्ग और नरक, सबसे पहले हमारे को डेफिनेशन समझने की क्या है। आप बोल रहे हो ये करोगे नरक जाओगे, हमको क्या पता किसने देखा जी नरक, क्या बोलोगे? तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये नरक और स्वर्ग का कंसेप्ट क्या है। कि ठीक है, आप नहीं मान रहे अभी तक के लिए नहीं मानिए, लेकिन अब पहले हम ये सोचेंगे कि ये स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट क्या है। जैसे इस जगत में एक व्यक्ति को कुछ अच्छा करने पे पुरस्कार मिलता है, और दूसरे व्यक्ति को कुछ गलत करने पे जेल मिलती है, पनिशमेंट्स मिलती हैं बहुत सारी। तो जब हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा जो नेचर है, इस नेचर में हम ये मैन मेड जो लॉज हैं, ये भी हमारा एक नेचर का पार्ट ही बन गया है कि किस प्रकार आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको उसका भोगना पड़ेगा। जैसे आप पेड़ काट दीजिए सारे, कितने कितने वर्ष तक फिर आप जीवित रह पाएंगे? बल्कि बहुत जल्दी ही पूरे धरती का ही सर्वनाश हो जाएगा। और साइंस तो बोलती है कि अगर आपने सिर्फ जो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के ही धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है। सिर्फ मधुमक्खियां खत्म होने से ही मनुष्य खत्म हो जाएंगे, ऐसा ये बताया गया है उसमें। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये IIT गोल्ड मेडलिस्ट है कानपुर से, इसलिए वो साइंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम ये समझेंगे कैसे जो पूरा नेचर है आपस में कनेक्टेड है, और उसमें खिलवाड़ करने से उसमें खिलवाड़ करने से कैसे हम उसमें उसकी जो उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा हमारे को। तो नेचर के साथ भी, और यही हम देख रहे हैं, एक छोटी से छोटी वस्तु, आप अच्छी चीज करेंगे तो आपको पुरस्कार, बचपन से ही हम ये देखते आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो भगवान का जो ये नेचर का जो लॉ है, इसको हम नहीं फॉलो करेंगे, इसको अपोज करेंगे, तो हमें उसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो ये स्वर्ग और ये जो नरक की बात है, तो ये एक ऐसी वस्तु है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। पहले दो जुड़वा भाई हैं, सपोज करिए, वो दो जुड़वा भाई, उन्होंने बचपन में पैदा हुए एक ही घर में, एक ही प्रकार की फैसिलिटीज मिली, सब कुछ उनको सेम मिला।
अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सेम एजुकेशन, सेम माता पिता, सेम स्नेह, सब कुछ सेम। अब उसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं दोनों में स्वभाव की बड़ी फर्क आ रहा है। हर चीज तो सेम ही मिला, हर चीज, जब भी मम्मी बाहर जाती थी कुछ खरीदने तो दो ही खरीदती थी और सेम कलर का हर चीज, ऐसा ले लो। तो फिर भी लेकिन उनकी चित्तवृत्ति, बड़े होकर क्या हुआ, एक व्यक्ति ऐसा बहुत ही सज्जन व्यक्ति बना, दूसरा व्यक्ति एकदम आतंकवादी बना। तो अब ये दोनों ही भाई एक बार गाड़ी में जा रहे थे और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अब ये व्यक्ति जिसने सेक्रीफाइसेस कर करके समाज की सेवा, भक्तों की सेवा, हर प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति का इसने रोल निभाया, और दूसरा व्यक्ति जिसने पूरा आतंकवाद फैलाया। अब उनको मान लीजिए इस जगत में हमारी आंखों के सामने उस व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा पुरस्कार भी नहीं मिला और ना ही इस आतंकवादी को बहुत बड़ा कोई सजा मिली। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ने इतना फर्क किया। अब इन दोनों के जो डेथ हुई, जब ये मरे तो एकदम ही सिमिलर मरे, तो क्या इन दोनों की पोजीशन सेम होगी? कभी भी हो सकती है इन दोनों की पोजीशन सेम। इसको हम छोटे से एग्जांपल से भी समझते हैं, कैसे एक व्यक्ति जब वो एग्जाम के लिए जाता है, हम ऑडियंस से पूछते हैं, जो गलत बना, जो आतंकवादी बना, उसको जेल में डालना चाहिए कि उसको खुला छोड़ना चाहिए? बताओ। जेल में डालेंगे ना, क्यों डालेंगे? तभी तो उसको पता चलेगा अपनी गलती का रियलाइजेशन तभी होगा। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है, हर चीज का ना एक सिस्टम है। जैसे हम इस समाज में रहते हैं तो एक हम उस सिस्टम के तहत चलेंगे तो सही चलेंगे। जो सिस्टम से आउट चलेगा बंदा, उसको तो उसका सजा देनी ही पड़ेगी। खुला भी नहीं छोड़ सकते। भगवान ने भी एक सिस्टम बनाया है। अब इंडिया में रहते हैं, सपोज हम इंडिया के कायदे कानून नहीं मानेंगे ना, हम इस लोकेलिटी में रहते हैं तो इस लोकेलिटी के हिसाब से हमारा सिस्टम चलेगा। तो इसका मतलब वो जेल होना जरूरी है ना? हाँ, वो जो सिस्टम से आउट जाएगा, हर चीज के कायदे कानून है, तो जो भी सिस्टम से आउट जाएगा तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। इसको एक सरल भाषा में एक थंब रूल, एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जैसा आप करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट, बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट। जैसे एक सिंपल कभी ऐसा भी होता है, देखिए कि सम टाइम बोल रहा हूँ बीच में, अब आप देखते हैं कि एक आदमी है वो इतने बुरे कर्म कर रहा है फिर भी वो सही जा रहा है, और एक आदमी है वो अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा। ये एक बहुत तो उसका एक रीजन, उसका बैंक बैलेंस है। आपके पास सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है और ये किट्टू के पास सपोज 100 रुपए है। अब ये मेहनत कर रहा है तो इसको तो 100 के हिसाब से मैं खर्च करे ही जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब 5-10-100 रुपए मेरे रह जाएंगे तब मेरे पे इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट तो उसी समय आना शुरू हो गया जब घट रहा है। हाँ, लेकिन जब 100 रुपए रह जाएंगे या 50 रह जाएंगे तब विजिबल हुआ था, तब देखो। अब मेरा एक प्रश्न है, हम देखते हैं जो गलत काम कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, खूब खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उसको तो देख रहे हो तरक्की करता है। जो बेचारा सीधा साधा अपना काम करता है वो तरक्की नहीं कर पाता और वो सिंपल से ही रखता है और नीचे जा रहा है। नीचे नहीं जा रहा मतलब नॉर्मल चल रहा है। ऐसा क्यों? फिर तो सबको गलत हो जाना चाहिए था। उसका बैंक बैलेंस ज्यादा है ना अभी। हाँ, बताओ। सही बोल रहे हो आप, इससे बोल रहे हो। क्योंकि उसका बैंक बैलेंस अभी कर्मों का बैंक बैलेंस ऐसे ऊपर है और उसका यहाँ पे है अभी, उसको यहाँ लाना है अभी। जरूरी नहीं है कि वो वहां लाना भी चाहता है, एक अलग चीज है, लेकिन वो फिलहाल इस स्थिति में खड़े हैं। जो बेचारा ईमानदार है वो यहाँ खड़ा और है, जो खर्च करेगा तो क्या होगा? नीचे आएगा। ये ऊपर से लग रहा है वो मौज मस्ती कर रहा है। इसका एग्जांपल दिया गया, जैसे मैं इलिटरेट हूँ, कुछ नहीं पता, विकास ने मेरे को अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए और एक एटीएम कार्ड दे दिया, ये मशीन में जाओ, रोज कितना विड्रॉल होता है? 20,000 का करा लो। अब मैं रोज 20-20 हजार पे विड्रॉल कर रहा हूँ, रहने दो। रोज मैं 20-20 हजार का विड्रॉल कर रहा हूँ, खूब मौज मस्ती कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। कितने दिन चलेगा 20-20 हजार? बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? उसके बाद एटीएम से पैसा निकलेगा? तो ये जो देख रहे हैं ना हम लोग, यार ये तो बहुत पार्टी कर रहा है, बहुत मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन ये काम धंधा भी गलत वाला कर रहा है। तो हम बेकार हैं, पागल। सुबह फैक्ट्री में जाते हैं, शाम को आते हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें गलत काम? आप बात को समझना। वो
अपना जो विकास ने बोला बिल्कुल ठीक बात बोली, वो अपना सारा जो पुण्य पिछले जन्मों का उसको जीरो कर रहा है वो, और जो सही व्यक्ति है वो अपना बैलेंस बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति इतना फेमस हो जाता है, एक तेल बेचने वाला फिल्म स्टार बन जाता है, प्रारब्ध है उसका। हाँ, और उनका प्राइवेट जेट है, वो सुख सुविधा में है, हर चीज की पेमेंट है, इस बात को याद रखना। उसने इसका पेमेंट कर रखा है, आज उस सुविधा को वो एंजॉय कर रहा है, वो फैसिलिटी को एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसने पेमेंट कर रखी है। कैसे पेमेंट कर रखी है? मान लो कोई भी एक एग्जांपल लो, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट 1000 करोड़ का मालिक है, ऐसे कैसे बन गया वो? जन्मों जन्मों का खेल है, उसके पुण्यों के कारण वो पुण्य इनकैश कर रहा है। सिंपल लॉजिक तो यही है। पुण्य कैसे कमाए जाते हैं? सेक्रीफाइस। बिना सेक्रीफाइस के पुण्य नहीं कमाया जा सकता। कैसे सेक्रीफाइस? ये 1000 रुपये कमाते हैं महीना और 100 रुपये का कुछ ये पुण्य करते हैं, तो वो 100 रुपया ये फैमिली पे भी खर्च कर सकते थे, लेकिन 100 रुपये का इन्होंने सेक्रीफाइस किया। बात समझ आ गई ना? अब 900 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, 100 रुपये का इन्होंने सेक्रीफाइस किया। वो हर एक 100 सेक्रीफाइस जब इकट्ठे होते हैं तो इतना फेमस बन जाता है। इसका मतलब वो ओवरनाइट इतना ऐसा नहीं हो गया, इतने जन्मों का जो सेक्रीफाइस, अपने सेक्रीफाइस का ही फैसिलिटी बुक करता है। सिंपल लॉजिक यही है। अब 5 स्टार होटल में जाओ, 20,000 रुपये का एक दिन का खर्चा है, समझ रहे हो? आप 1 स्टार 2 स्टार में जाओ तो 5-7 हजार का खर्चा है। जितनी फैसिलिटी आप उतना पेमेंट कर रहे हो। तो जो इतने फेमस पर्सनालिटीज हैं या बड़ी रिच पर्सनालिटीज हैं, ये ऐसी थोड़ा बन जाती है। रैंडमली किसी को चूज कर लिया नहीं, हर व्यक्ति अपने पुण्य का ही एनकैशमेंट करता है और हर पुण्य सेक्रीफाइस चाहता है। आप जो भी सेक्रीफाइस आज कर रहे हो, आप कोई दान दे रहे हो, दक्षिणा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा पुण्य के रिकॉर्ड में जा रहा है। आपको लग रहा है आपकी जेब से 500 रुपये गया, विकास बाबू जी 10,000 रुपये कमा के आए, रात को महाराज जी आ गए, महाराज को 2,000 रुपये देना ही पड़ा। नहीं, ऐसी बोल रहा हूँ, दियो मत देना ही पड़ा, आ गए घर तो क्या करें। अब लग रहा है जेब से 2,000 तो निकल गए, ठीक है, यहाँ तो 2,000 रुपये कम हो गए ना, लेकिन एक और लेजर है, वहां पर आपके 2,000 ऐड हो गए हैं। टेंजिबल एक्सटर्नली बाहरी रूप से लग रहा है 2,000 रुपये कम हुए हैं, लेकिन एक और लेजर है जहाँ पर 2,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ऐसे करते 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 जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, बस जन्म ही ऐसे घर में होगा। एक सवाल इसमें आ जाता है, जिसके पास धन ज़्यादा है वो अगर ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो धन किसी को दान नहीं कर पा रहा, या सेक्रीफाइस किसी और फॉर्म में करेगा, हाँ, किसी और फॉर्म में, सेवा के रूप में। में करेगा। मैं वृंदावन गया एक बार, बहुत भारी 2 सामान थे मेरे पास, दोपहर का टाइम 1:30 बजे का। आप वृंदावन में जून के महीने में 1:30 बजे जाओ, आपको सड़क पे कोई नहीं मिलेगा, रिक्शे वाले भी सो जाते हैं, इतनी गर्मी में रिक्शा भी नहीं चलाते। मैं बस से उतरा, कोई रिक्शे वाला नहीं, एक बेचारा पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने दूर से देख लिया, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, और बैग इतनी भारी भारी किताबें थी, घसीट रहा था। वो अपनी नींद है ना, नींद छोड़कर मेरे पास आया, कहता महाराज जी कहाँ जाना है? मैंने बोला सेवा कुंज में हमारा मठ है। अच्छा मैं छोड़ दूंगा। मैं कहा पैसे बताओ? कहते पैसा तो सारा दिन ही कमाता हूँ, एक आधी सेवा भी हो जाए मेरी। यात्रियों से पैसे कमाता हूँ, आप तो वृंदावन के ही हो। मैं कहा भैया बाद में तुम लोग झगड़ा करते हो, पहले फाइनल कर लो। कह रहा आप जो दोगे कसम खा के कहता हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं आपको हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ एक सेवा मेरी भी होने दो। आप साधु हो, आप शायद गुरु जी की सेवा कर रहे हो, आपके हाथ में ग्रंथ हैं, तो पैसे मैं सबसे लेता हूँ, आपसे एक पैसा नहीं लूँगा। मैं देख रहा हूँ गर्मी में आप भी बड़े परेशान हो। वो नींद छोड़कर, उसकी आंखें लाल थी, नींद छोड़कर आया, मेरा सामान खुद ही उठाकर रिक्शा में रखा मेरे आश्रम तक, और मेरा कमरा था ऊपर 2nd फ्लोर पे, ऊपर तक छोड़कर आए कमरे में।
तो मैंने अपनी इच्छा से, होता है ना कोई आपके लिए इतना करे, 20 रुपए का हिसाब था, मैंने 50 रुपए उसको पकड़े, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया मेरे से। कहता है सारा दिन तो कमाते हैं, थोड़ी सी सेवा ही हो जाए। तो मैंने एक डिब्बा प्रसाद का, अब वो डिब्बा 150 रुपये से कम नहीं था। अगर आप हिसाब लगाने बैठो, जो 1 रुपया भी नहीं ले रहा, अपनी नींद छोड़ रहा है, गर्मी में पसीने से लथपथ हो रहा है, उसको मैंने एक डिब्बा प्रसाद का दिया। और साथ साथ ये कह दिया कि हमारे तो यात्री आते रहते हैं, हम तेरे को फ़ोन कर दिया करेंगे तो यात्रियों को दर्शन कर। उसको बिजनेस मिल गया ना। ये तो बाय प्रोडक्ट बता रहा हूँ, लेकिन उसने वो पुण्य कमाया कि नहीं, उसके लिए सेक्रीफाइस किया ना। इसलिए पुण्य कमाने के लिए सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो वो ऊपर से आपको लगता है कि मैंने इतना पैसा दे दिया, वो नुकसान हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अरे बंटी उसका लाभ भी हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। कंटिन्यू करोगे, हो गया सब कुछ। भूख भी लग रही है अब सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। एक मेरा प्रश्न और है, एक शेर है और एक बकरी है, और मुझे दिख रहा है कि मैं बकरी की जान बचा सकता हूँ। उसका आंसर मैं देता हूँ। महाराज जी भजन तो सुनवा दो एक और। उसको उसके सहारे छोड़ दो। प्रकृति का नियम है कि क्या पूछा? जीव ही जीव का भोजन है, ठीक है ना। जीव ही जीव का भोजन है। वो शेर उसको जो खाएगा वो उसका भोजन है, उसको खाने दो, उसमें आप बीच में मत पड़ो, नहीं तो आप भी किसी एक कर्म बंधन में वापस फंस गए। तो ये स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमको, आप बोलते हो नॉन वेज मत खाओ, आप भी तो ये खाते हो, सब्जियां खाते हो, पत्ते खाते हो, तो आप लोग भी तंग करते हो, बोलते हैं ना बच्चे। तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आप भी तो हिंसा कर रहे हो, और आप हिंसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? पेड़ से आप फल खाते हो, पेड़ से सब्जियां लेते हो, ये सब करते हो। जैसे शेर है, उसके दांत जो है वो नॉन वेज खाने के लिए ही बने हुए हैं। हमारे दांत तो ऐसे नहीं, ना हमारी आते हैं ऐसी। तो बात ठीक है, वो इसका भगवान ने particular- उसको सिस्टम के लिए बनाया है। तो ठीक है, इसका आंसर दो कि आप भी तो हिंसा करते हो और खाते हो, और हम भी अगर मांस खाते हैं, हम भी हिंसा करके खाते हैं, आप हमको क्यों रोकते हो? आप भी अपने आप को रोको, फिर खाओ भी मत। इसका जवाब क्या दो? अगर हम फल खा रहे हैं तो हम हिंसा कैसे कर रहे हैं? क्यों? गिरेंगे तो होते हैं पेड़ प्लांट से सड़ नहीं तोड़ेंगे। जाएगा, अगर वो गिरेगा हम नहीं खाएंगे तो वो सड़ जाएगा। जरूरी है गिरेगा? नहीं गिरा ऐसे तो सही, शेर वो कहेगा, भारीता हो जाता है। ऐसे तो शेर कहेगा ये बकरी भी वो बूढ़ी हो तो जाएगी। मरेगी तो सही, तो complete है। वो साइकिल तो कंप्लीट है, बट अगर हम उसे नहीं खाएंगे तो वो खराब ही होगा, तो इससे अच्छा खा ही लें। मैं तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ बच्चे कितने होशियार हैं, इनसे ही आंसर सुन रहा हूँ मैं। देखो नेचर ने ऐसा बनाया ना सिस्टम, वो हमारे लिए है, वो उनके लिए। सब लोग सही बोल रहे हैं। मैं इसी बच्चों से सुनना चाह रहा था कि ये क्या कहते हैं इस विषय। और एक बात समझो, गाय दूध देती है ना, अगर बछड़ा दूध नहीं पीता ना, गाय को पेन होता है, और बछड़ा अगर दूध पीता है या दूध वाला दूध निकालता है तो उसको सुख लगता है, उसको दुख नहीं लगता। उसका गाय का नेचर ही है देना। ऐसे ही मदर अर्थ, उसको मदर बोलते हैं, मदर का नेचर ही क्या होता है? देना। इसलिए उसको पेन नहीं होता, वहाँ पर हिंसा नहीं, वायलेंस नहीं है। पेड़ को और जहाँ सब्जी उगती हैं उनको भी अपनी नेचर पता होती है कि अगर कोई हमारे से फल और सब्जी तोड़ेगा तो हमारा फिर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उनको भी पता होता है। इसलिए उनको देने में सुख लगता है, दुख नहीं लगता। लेकिन कोई भी एक जानवर अब शरीर देने में उसको सुख नहीं लगता, वो रोता है, चिल्लाता है, जबरदस्ती किया जाता है। पेड़ बोल ये जबरदस्ती नहीं करते, इनका नेचर ही देना है। ये डिफरेंस है। अगर कोई पूछे तो बताओ। ये तो ठीक है, फिर जो आपने पहले आंसर दिया था कि साइकिल डिस्टर्ब मत करो, अपने कर्म खराब करोगे, तो उसका लॉजिक फिर यहाँ कैसे फिट हुआ?
इस आंसर पे। अगर शेर ही उसको खा रहा है डियर को, तो वो तो साइकिल है, तो वो तब भी तो रोता ही है, तब भी चिल्लाता ही है, तो फिर ये लॉजिक वहाँ पे तो नहीं होगा। लॉजिक ये कह रहा हूँ कि हमको नहीं खाना। हमको नहीं खाना, वो वाली चीज ठीक है, हाँ वो खा रहे हैं तो वो ठीक है। हाँ, अगर साइकिल है ना, नहीं, पशु हम लोग भोग योनि है, हम जो करेंगे हमको उसका रिएक्शन आएगा, पशु को रिएक्शन नहीं आता, बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड, आवर कॉन्शियसनेस इज एलैबोरेट, दैट्स व्हाई वी डोंट गेट रिएक्शन, वी गेट रिएक्शन, दे डोंट गेट रिएक्शन, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ही नहीं है। इसलिए शेर अगर बकरी खाता है उसको कर्म भोग नहीं पड़ना पड़ता, हम बकरी खाएंगे हमको कर्म भोग पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस उनसे वास्ट है। एक चीज दोनों और, एक कंपैरिजन नहीं होगा, समझे? सपोज आपके जीवन में मैं नीचे गिर गया, किसी जानवर योनि में गिर गया या किसी में गिर गया, तो उस साइकिल से कैसे